So that median is depend on the number of even observations or number of odd observations. Okay, if we have odd observations, then what is the median? In case of odd observation, what is the median? Okay, you will get a single mid value, है ना? You can check like this: 1, 2, 3, 4, 5. If these observations are odd, you will get only one middle value, and that become the median. Okay, but in case of even values, like say 1, 2, 3, 4, 5, 6, so these are the even number of observations. So in that case, we have two middle value. Okay, so just take average of this, then that become the median. ये आपको 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? Then it become the median. So this is all about the median. What is mode? Mode is highest frequency value. highest frequency value. Okay, and or the number, this is the number. Okay, highest frequency value. Okay, and now this is not there in your syllabus. If you are interested, you can refer the definition. Okay, so yeah, so this part we already completed, and now before I start the next topic, okay, I want to revise few definitions again because which are important. Okay, so our major focus is on arithmetic mean. So just tell me the definition of arithmetic in two cases. If we have ungrouped data or the random observations like this xn, tell me the arithmetic mean. In this case, arithmetic mean is denoted by x bar, and if we have a data in terms of frequency distribution like this, so x1, x2 up to say xk, and f1, f2 up to say xk, tell me the mean for this case. Anyone? Summation xn I 1 to n upon n. Okay, so just add all these numbers divided by total number of observations. This gives the mean. And what about this second case? What about the second case, frequency distribution? What? Summation xi. So summation x upon summation of Summation fi. f. And in general, this summation of fi is denoted by capital N. So just remember that notation. Okay, this is very almost in every statistical tool we need to calculate the arithmetic mean. Okay, therefore it is very important. Yeah, and now we are ready to start the next topic. So our first topic was the central tendency, so by which you will get the average value of a given data or the mean of a given data, and there are different tools: mean, mode and median. Now next statistical tool, that is dispersion. Okay, हमने start किया था ना बस, या मतलब we have already completed that topic, standard deviation, coefficient of variation. I think थोड़ा बहुत introduce किया था जितना मुझे याद है. Okay, so what is dispersion? Dispersion gives you the scatteredness. Okay, what is dispersion? Dispersion gives you the scatteredness present in the given data. Okay, scatteredness or the dispersion present in the given data. And in our syllabus there are two tools by which you will get the dispersion present in the given data. So the first tool is standard deviation. So first tool is the standard deviation, and second tool is coefficient of variation. Okay, so let us first discuss how we get the standard deviation. Okay, so so in general, if this is my observation x1, x2 up to xn. हमेशा जो मैं फॉर्मूला देने वाला हूँ, मैं इस केस में ही देने वाला हूँ, आपको उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज होता है ना, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. So what is the standard deviation when we have these random observations? So the standard deviation, it is denoted by sigma, and it is defined as under root of, now remember this definition, under root of 1 by n summation xi minus x bar whole square, where I runs from 1 to n. This is the actual definition. This is the actual definition of standard deviation
एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन वन एग्जांपल ऑन दिस. ओके, इस पे एक एग्जांपल भी मैंने लिया था. ओके, so this is your standard deviation and but for calculation purpose, okay, इस पे क्या होगा, इस डेफिनेशन से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट टेक्स टाइम. ओके, सो जस्ट फॉर अ कैलकुलेशन पर्पज, ओके, आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस. तो मैंने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है? सो दिस इफ यू डू दिस सिंप्लीफिकेशन और इफ यू स्प्लिट दिस a minus b whole square, okay, if you split this a minus b or if you use the formula of a minus b whole square, okay, the simplified form of the standard deviation is समीशन सिग्मा स्क्वायर. मैं डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला हूँ, बाद में आप अंडर रूट लेके उसको कैलकुलेट कर सकते हो. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समीशन xi स्क्वायर वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to n माइनस x बार होल स्क्वायर. ओके, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे मैं कैलकुलेशन में यूज करने वाला. ओके, दिस बोथ फॉर्मूलेज आर सिमिलर. ओके, इसको ही मैंने सिंप्लीफाई करके, ओके, आई गॉट दिस सेकंड सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज योर एक्चुअल डेफिनेशन. यू कैन रिमेंबर लाइक दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज जस्ट द सिंप्लीफाइड फॉर्म. दिस इज जस्ट द सिंप्लीफाइड फॉर्म. ओके, नाउ लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑन दिस एंड आप ही कैलकुलेट करके मुझे बोल सकते हो. ओके, सो लेट मी टेक द ऑब्जर्वेशन लाइक 3 7 8 9. ओके, सो if you want to calculate the standard deviation from first definition, so that become under root of 1 upon कितने ऑब्जर्वेशन है 4, so 1/4. okay, summation of what xi minus xi whole square. okay, so xi मतलब 3 minus, let's calculate mean first. so what is mean? 3 plus 7 plus 8 plus 9/4. can anyone calculate this? 3 plus 7 6.75. 6.75. so we have to subtract this mean from each observation. 6.75 square plus next क्या था 37. हाँ, so 7 minus 6.75 square plus 8 minus 6.75 square plus 9 minus 6.75 square. okay, and if you do this calculation you will get the standard deviation. this is from a first definition. second definition से आपको क्या करना होगा? we need to calculate sigma square and then it become 1/4. can you tell me what is in the bracket? summation xi square means what? क्या करना है? हर एक का स्क्वायर करके ऐड करना है. so 3 square plus 7 square plus 8 square plus 9 square. okay, this is in one bracket माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 6.75 का स्क्वायर. सो दैट गिव्स यू सिग्मा स्क्वायर. उसके बाद आपको सिग्मा मिल जाएगा, दैट गिव्स यू सिग्मा. ठीक है, सो रिमेंबर फॉर कैलकुलेशन पर्पज आई एम गोइंग टू यूज दिस सेकंड डेफिनेशन. ओके, सो लेट मी शो यू अगेन दिस. ये शायद हुआ था लास्ट लेक्चर में. सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. एंड नाउ कैन एनीवन टेल मी, क्योंकि अब इसके आगे सारे फॉर्मूलेज आपको रैंडम ऑब्जर्वेशन के लिए ही कंसिडर करने. देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर इस फॉर्म में डाटा आपके पास आ जाता है x1 f1 है ना, like say xk fk, then how you change this formula. okay, so can anyone tell me that change? एज्यूम करो कि अभी आपके पास जो डाटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो वही मैं सेकंड केस आपको दे रहा हूँ. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला इन दैट केस? क्या क्या चेंज होगा आपको समझ में आना चाहिए अभी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी में कैसे स्विच करना है. ओके, सो दिस के इज व्हाट इन द फर्स्ट केस. व्हाट इज के इन फर्स्ट केस? व्हाट इज के? Number of observation. So in frequency distribution, what is the total number of observation? In frequency distribution, what is the total number of observations? Capital N. Capital N, or that is nothing but summation of Fi. okay, it is denoted by capital N. so this K is replaced by capital N. okay, ये चेंज होगा ना. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस बाय दिस वेयर समेशन आई रन फ्रॉम सम 1 to. अब ये के मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अभी यहाँ पे पता नहीं आपको क्या है, सो इसको ऐसे रखते हैं मैं. ओके, या इसको मैं कुछ भी नहीं मेंशन कर रहा हूँ.
no need to specify the summation, it depend on the given observations. Yeah, so summation क्या चेंज होगा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर एक ऑब्जर्वेशन से आप x बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसका स्क्वायर ले रहे हो. सिमिलरली x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर. बट अभी जो आपके पास डाटा है उस डाटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो x1 ऑब्जर्वेशन है दैट x1 ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड f1 टाइम्स, that x1 observation is repeated f1 times, then what is the value of this. तो क्या क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे, x1 माइनस, अगर आपका x1 f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, प्लीज फोकस ऑन माय स्टेटमेंट, अगर आपका x1 f1 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो x1 माइनस x बार कितने बार रिपीट होगा, F1 टाइम. f1 टाइम्स ही ना, क्योंकि x1 अगर आपका f1 टाइम्स वहां पे रिपीट हो रहा है तो x1 माइनस x बार मुझे कितने बार करना होगा, f1 टाइम करना होगा. सो इन जनरल दिस xi माइनस x बार स्क्वायर इज रिपीटेड fi टाइम्स, सो दैट बिकम द फॉर्मूला. इज इट क्लियर नाउ, एनी डाउट, इज दिस क्लियर, दिस कन्वर्जन. हमेशा याद रखो बस इसको fi से मल्टीप्लाई करना है, इतना ही चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है. इज दिस क्लियर? यस सर. चेक करो ना, अगर x1 f1 टाइम्स, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x1 ऐसे आपको लिखना है f1 टाइम्स, तो हर एक से आपको x बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार, ये कितने बार जाएगा, f1 टाइम्स जाएगा. सो दैटफॉर इट बिकम f1 इंटू x1 माइनस x बार होल स्क्वायर. ओके, सो इसलिए हमेशा अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता है ना तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो इजी होता है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ओके, बस आपको थोड़ा इनिशियली वर्कआउट करना होगा, अच्छे से देखना होगा इसको, बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा. Okay, so this is the actual definition of standard deviation, but I already told you for calculation purpose I need to change this. Okay. But before that, let me take few remarks. Standard deviation is equal to under root of variance, or variance is equal to sigma square. First result, but for calculation purpose we need to use the following formula of standard deviation. So this is the first formula. तो ये change होके आपका इसमें जाने वाला है, समय sigma square अभी आपको मैंने दिया है, दिस इज इन वन ब्रैकेट. ठीक है, ये 1 मिनट, ये आपका एक ब्रैकेट में है, लेट मी पुट दैट ब्रैकेट, हमेशा कंफ्यूजन होता है आपका यहाँ पे. दिस इज इन वन ब्रैकेट एंड दिस इज इन वन ब्रैकेट, मतलब ये मैं डाल ही देता हूँ, नहीं तो ना ये इससे ही जाएगा. ठीक है, okay, so this is the formula. Now can you tell me the same formula in terms of frequency distribution? Can anyone tell me the same formula when we have a data in terms of frequency distribution? So what is that change? Yes, anyone, can you try, tell me the similar formula in terms of frequency distribution. 1 upon what? Capital N. Capital N. Then what about summation, क्या लिखना है, xi स्क्वायर. तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, fi xi स्क्वायर, F5 times. xi स्क्वायर, क्योंकि हर एक वैल्यू f1 xi वैल्यू रिपीटेड fi टाइम्स, तो xi स्क्वायर वैल्यू रिपीटेड fi टाइम्स, है ना. सो दिस इज इन वन ब्रैकेट माइनस x बार स्क्वायर. बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में x बार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप चाहो तो बाद में स्पेसिफाई कर सकते हो. ये फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला. इसलिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है. ठीक है, एंड नाउ लेट मी डिफाइन द सेकंड डेफिनेशन, देन आई विल टेल यू व्हाई वी नीड दिस सेकंड डेफिनेशन, एज वी ऑलरेडी हैव वन टूल. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको क्या समझ में आने वाला है, यस, व्हाट द स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स यू, इससे आपको क्या समझ में आने वाला है, द डिस्पर्शन और स्कैटर्डनेस प्रेजेंट इन द गिवन डाटा. ओके, द डिस्पर्शन और scatteredness present in the given data. So already we have that tool. Okay, now so why we need this second definition, coefficient of variation. So let me first define it. So coefficient of variation is equal to standard deviation upon its arithmetic mean multiplied by 100. Okay, can anyone tell me the difference between these two definition? Difference in the sense, can you guess why we need this coefficient of variation?
ये शायद मैंने कल लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बोला होगा इसके बारे में, वाई वी नीड दिस सेकंड डेफिनेशन। ओके, अभी के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपको आने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आने वाला है, ठीक है। सो व्हेन वी नो the scatteredness or dispersion present in the given data in terms of percentage, then it become easy to conclude about that data, है ना। अगर आपके पास उस डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपके पास परसेंटेज में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद कंक्लूड करना थोड़ा इजी हो जाता है। बट अगर आप वो सेम आंसर अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन में अगर आप वो वैल्यू देखते हो ना, तो उससे आपको जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, yes, it is true that standard deviation gives you scatteredness present in the given data, but वो आप जज नहीं कर पाते हो कि यार इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब स्कैटरनेस ज़्यादा है वहाँ पे या स्कैटरनेस लेस आ रहा है वहाँ पे। यू कांट जज, यू कांट कंक्लूड दैट पार्ट, बट व्हेन वी गेट दैट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर अस टू कंक्लूड अबाउट दैट डाटा कि कितने परसेंटेज में स्कैटरनेस वहाँ पे प्रेजेंट है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये इसका प्रूफ है कि ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है शायद। हाँ, इफ यू वांट यू कैन रेफर, इट इज देयर इन पीपीटी। हाँ, सो देयर आर फ्यू रिमार्क्स अगेन। स्टैंडर्ड डिवीजन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू और सिंपली स्कैटर्डनेस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इन परसेंटेज। ओके, तो उसका एक रीजन मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, आप एज्यूम करो कि आपके पास एक कोई डाटा है, एज्यूम करो दिस इज माय गिवन डाटा। ओके, और मैंने क्या किया, उसका कैलकुलेशन किया है एंड मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 0.20। जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम। ओके, सो मेरे पास एक डाटा है, उसका मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और वो मेरा आंसर आ रहा है 0.20। कैन यू जज और कैन यू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस? द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, कैन यू कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस? आप ऐसे नहीं जज कर सकते यार 0.2 इज वेरी क्लोज टू 0, तो मतलब यहाँ पे लेस स्टैंडर्ड डेविएशन है। यू कैन कंक्लूड लाइक दिस। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि लेस स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स यू मोर कंसिस्टेंट, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू आती है 0.20, इट डिपेंड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर आपके ऑब्जर्वेशन 2, 3, 4, 5 है तो मे बी आपका आंसर इनके अराउंड ही होगा, इन वैल्यूज के अराउंड ही होगा। बट वो कैसे आप जज करोगे कि यहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है या लेस स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है? इसलिए द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट दैट मच यूजफुल। सो इफ आई कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग सीवी, सेम डाटा के लिए अगर मैं सीवी कैलकुलेट करता हूँ तो सीवी फॉर एग्जांपल मीन वहाँ पे, उस केस में मीन इसका आ रहा है 0.50। अगर इस केस में मैं सीवी कैलकुलेट करता हूँ, सीवी क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0.20 upon 0.50 multiplied by 100. What is 0.2 upon 0.5 multiplied by 100? What is this? 40. ठीक है, तो आपको यहाँ पे CV की वैल्यू क्या आ रही है? 40% आ रही है। तो आपको क्लियरली समझ में आता है 40% स्कैटर्डनेस प्रेजेंट है, मतलब वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्कैटर्ड है। ओके, दैट डाटा इज मोर स्कैटर्ड, ठीक है। तो ये जजमेंट आपको तभी मिलता है जब आप CV कैलकुलेट करते हो, जब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच स्कैटर्डनेस इज प्रेजेंट इन द गिवन डाटा। ओके, so that is a drawback with standard deviation, and therefore we need this definition, which is coefficient of variation. Okay, and as we know that coefficient of variation और standard deviation दोनों का रोल क्या है? दोनों का रोल क्या है? This two definition gives you dispersion or scatteredness present in the given data. This two definition gives you scatteredness और dispersion present in the given data. तो जितना dispersion ज़्यादा होगा, okay, so more CV और more CV means more variability, more variability. तो अगर वेरिएशन ज़्यादा आता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आपकी लेस होगी. So more CV implies more variability, implies less consistency. So it is not consistent. Less CV implies less variability, implies more consistency. Okay. And similarly, this result is similar to standard deviation also. More standard deviation
More standard deviation implies more variability, implies less consistency, and less standard deviation, less variability, more consistency. Okay, we'll take one real life example on this, so उससे भी ये clear हो जाएगा. Okay, now let me take some examples on this. Find standard deviation of this following data. Okay, so here they have given this data in terms of, this is the ungrouped data. Okay, frequency के form में नहीं है. So standard deviation for ungrouped data, this is the formula as I already told you. आपको ये simplified, ठीक है, जिसको मैंने change किया था. So we have to use only this formula. इनिशियली कुछ क्वेश्चन में मैं ब्रैकेट डालता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, है ना. एंड व्हाट इज मीन समेशन ऑफ एक्स अपॉन के. ओके, तो एक्स स्क्वायर में कैसे कैलकुलेट करा, एज वी नो दी एक्स ऑब्जर्वेशन. तो एक टेबल में मैंने सारे ऑब्जर्वेशन को मेंशन किया है, नीचे उसकी सम कंसिडर की है. ठीक है, सो एंड एक कॉलम में मैं एक्स स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, एंड नीचे उसकी सम है. इसका यूज़ क्या होगा, 1/8 total number of observation multiply by summation xi square become this 25,412 and minus summation of xi 448 upon 8 whole square. Okay, do this calculation, you will get 40.5 and that gives you sigma is equal to 6.3640. ठीक है. Now let me take one real life question. ये आपको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था आई थिंक लास्ट सेशन में. The scores obtained by two batsmen A and B in last 10 matches are given below. Okay, बैट्समैन ए का लास्ट 10 मैचेस का स्कोर है, बैट्समैन बी का लास्ट 10 मैचेस का स्कोर आपके सामने है. ओके, एंड वी हैव टू डिटरमाइन हु इज मोर कंसिस्टेंट. तो आप क्या करने वाले हो, आप CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने वाले हो प्लेयर ए का, एंड आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने वाले हो प्लेयर बी का. If I get this, then who is more consistent? What this implies? Suppose आपने ये कैलकुलेट किया और ये भी कैलकुलेट किया है, and if I get this relation, then which player is more consistent? B. क्योंकि जिसका CV ज़्यादा होता है, okay, उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है. Okay, so that implies B is more consistent. ठीक है, अगर ये ऐसे आता है तो A is more consistent. ये ऐसा क्वेश्चन है. तो दोनों केसेस में आपको पहले CV कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बैट्समैन A एंड फॉर बैट्समैन B. ओके, सो वेयर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर प्लेयर B. नाउ and we know the definition of sigma square, 1/k in one bracket summation xi square minus x bar whole square. X bar is this. So let us do the calculation for first player. Okay, तो ये फर्स्ट प्लेयर का लास्ट 10 मैचेस का स्कोर है, नीचे उसकी सम है. ओके, और अभी मुझे क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मुझे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये वैल्यू चाहिए. तो ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, हर एक का स्क्वायर मैंने एक कॉलम में कंसिडर किया है, देन इट्स सम बिकम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, अभी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ. अभी यहाँ पे तो ये ट्रिवियल है, ठीक है, बट आगे भी कुछ ऐसे टेबल के कैलकुलेशन आने वाले जहाँ पे ये ट्रिक आपको यूजफुल होगी. सी, अभी आप ये कैलकुलेशन कैसे करने वाले हो, एज पर माई नॉलेज. ओके, ये पता है आपको हाउ टू सेट अ फॉर्मूला इन साइंटिफिक कैलकुलेटर? एनीवन नोज हाउ टू सेट अ फॉर्मूला इन साइंटिफिक कैलकुलेटर? हाउ यू? नो सर. हाँ, नो सर. एक मिनट, एक बार मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास कैल्स में अवेलेबल है क्या. ठीक है, ओके, आई थिंक आपके पास अभी अलग अलग कैलकुलेटर है, EX होगा सबके पास, तो इसलिए जस्ट 1 मिनट, इफ इट इज देयर. Sir, I have ES. कौन सा है सबके पास, EX है या ES है? ES. EX. EX. मिक्स है. ES. ओके, ठीक है, किसी भी कैलकुलेटर में बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एक बार मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, गिव मी 1 मिनट. ओके,
तब तक मैं ये आगे का कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल टेल यू वन फास्ट वे टू डू दिस कैलकुलेशन. ये अभी यहाँ पे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसके आगे और उसका यूज होगा. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस. सो इट बिकम 1/10. ओके, मल्टीप्लाई बाय 26152. ओके, आप कैलसी साथ में रखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Minus x bar is 480 upon 10 whole square. So that gives me sigma square is this. Therefore sigma A, standard deviation of player A is 17.6409. This is just standard deviation. But आपको क्या चाहिए? CV चाहिए. ओके, तो CV क्या होगा? CV क्या होगा? हाँ, तो उसके लिए आपको मीन चाहिए. मीन इज व्हाट? आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था. समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट गिव्स यू मीन. सो CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन is equal to standard deviation upon mean multiplied by 100. So 17.6409 upon 448 multiplied by 100, that gives you 36.7519. Now repeat the same calculation. Repeat the same calculation for player B. So player B का लास्ट 10 मैचेस का स्कोर. सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सम चाहिए, समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर. इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, इट इज़ वाई एंड इट इज़ वाई. तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए आपको, तो आपने वो कैलकुलेट किया है. ओके, ये जो सम होगी दैट गिव्स यू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड देन 1/10. ओके, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 22626 माइनस मीन क्या होगा? वाई बार इज द समेशन ऑफ वाई आई 460 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दैट गिव्स यू 46. ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन आपको रिपीट करना है एंड दैट गिव्स यू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ प्लेयर बी. मीन उसका था 46. देयरफॉर सीवी ऑफ प्लेयर बी स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज दिस 12.1078 upon 46 multiplied by 100, that gives you 26.3214. So if I compare the coefficient of variation of player A, which is 36 point something, and player B, which is 26.32, okay, so what this implies, the coefficient of the CV of player A is more than the CV of player B. Okay, so what is your conclusion? What this implies? Which player is more consistent? B. B player is more. Batsman B. This implies player B is more consistent. ठीक है? Okay. Now let me explain how you can set a formula in scientific calculator. ठीक है? So just give me 1 minute. मैं कनेक्ट होता हूँ यहाँ से. मैं मोबाइल पे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इस टॉपिक में हमें चाहिए. आई नीड दैट पार्ट. ठीक है, सो प्लीज सिट विद द कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर. लेट मी फर्स्ट ज्वाइन दिस मीट. कैलसी लेके बैठो, मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. Okay. Is it visible now? Yes, sir. So how you fix any formula? तो उसके लिए आपको मैं एक
ट्रिक देता हूँ अभी जैसे आप यहाँ पे देखो कि जो अभी शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, अभी आपको कैलकुलेशन क्या करना था, एक कॉलम में x था, है ना, x के वैल्यूज थे, और सेकंड कॉलम में x स्क्वायर कैलकुलेट करना था। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x इंटू वाई हो सकता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। सो दैट सेकंड कॉलम आपका कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप हमेशा कैल्सियम में क्या करते हो, 40, है ना, सब 40 स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप 40, हाँ 40, ओके, फिर उसका स्क्वायर का बटन प्रेस करोगे, इक्वल, ओके, ऐसे आप हर टाइम रिपीट करोगे, है ना। नेक्स्ट इसमें फिर आपका आएगा 16 का स्क्वायर है तो 16 मैन्युअल आप कैलकुलेट करने वाले हो वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आपके कैल्सियम में जहाँ पे आप वो फॉर्मूला फिक्स कर सकते हो और उसके बाद आपको बस वैल्यू चेंज करने, ठीक है। सो यू डू दैट। सो अब मेरे साथ ट्राई करो। अभी यहाँ पे थोड़ा शो करना डिफिकल्ट हो रहा है, अदरवाइज मैं मैनुअल ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स बेटर मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे इतना ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन। आपके पास कैल्सियम है तो मैं दोनों कैल्सियम में एक्सप्लेन करता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, ओके, आपको क्या करना है, फर्स्ट टेक एक्स ऑन योर स्क्रीन। ओके, अगर ईएस कैलकुलेटर है तो आई थिंक अल्फा और ओपन ब्रैकेट के बटन से आपको एक्स मिल जाएगा। सो फर्स्ट टेक एक्स ऑन योर स्क्रीन। डन। अब देखो रेड में होगा EX में भी, आप देखो एक्स कहाँ पे है, तो वो एक्स आपको स्क्रीन पे लेना है। तो आपके स्क्रीन पे बस इतना ही दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट है। Yes, sir. Yes. नाउ आपके पास फॉर्मूला क्या, आपको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ प्रेस स्क्वायर बटन। सो व्हेन यू प्रेस स्क्वायर बटन यू विल गेट लाइक दिस। ओके, हाँ, अभी इसके आगे आप ये फॉर्मूला फिक्स करने वाले हो, आप हर एक वैल्यू के लिए यही कैलकुलेशन करने वाले हो, आपको बस वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए आपको कैल्क बटन प्रेस करना है, दोनों कैल्सी पे होगा कैल्क बटन। सो प्रेस कैल्क बटन। व्हाट इज ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, व्हेन यू प्रेस एक्स क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ, और उसके बॉटम पे कहीं पे कुछ तो वैल्यू होगी। ओके, यानी ये वैल्यू हर एक की अलग अलग आ सकती है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये प्रीवियस प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू रहती है एक्स की। एक्स की जो प्रीवियस वैल्यू है, जो भी आपने कहीं पे भी अगर कुछ किया होगा कैलकुलेशन, तो वो जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो वैल्यू वहां पे होगी। अभी आपको लेटेस्ट वैल्यू देनी, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आपकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 30। सो जस्ट प्रेस 30 एंड प्रेस इक्वल। आपको चाहिए 30 के लिए ना, सो 30 एंड देन प्रेस इक्वल। आई थिंक यू विल गेट 900 ऑन द स्क्रीन, करेक्ट है। Yes, sir. फिर से सारा इसके आगे कंटिन्यू करना इक्वल बटन से ही, प्रेस इक्वल। अगेन क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बट आपका नंबर क्या है 44, तो 44 इक्वल, करेक्ट। यू विल गेट 1936 एंड कंटिन्यू करो बस। 66 इक्वल, Sir. इक्वल 60 इक्वल। आर यू गेटिंग दिस। Sir. Sir. हाँ बोलो। Sir, please repeat. From the first step, I was disconnected. Okay. Okay. So first take capital X on your screen. Others, please do that calculation. First take capital X on your screen. अब देखो आपके यहाँ पे कहाँ पे ES में मुझे पता है, ES में वो अल्फा बटन और ओपन ब्रैकेट बटन से मिल जाता है आपको X। यस। Yes, sir. हाँ, उसके बाद अभी आपको क्या फॉर्मूला सेट करना है, एक्स स्क्वायर सेट करना है ना। सो जस्ट प्रेस स्क्वायर बटन, तो ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। डन। जस्ट प्रेस स्क्वायर बटन, पावर देनी बस, एक्स स्क्वायर स्क्रीन पे लेके आना, इतना ही करना है आपको। हाँ, डन और नॉट। Yes, sir. हाँ,
फिर उसके बाद इसके आगे अब ये फॉर्मूला फिक्स करके आपको बस x के वैल्यूज वैरी करने। अब सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला फिक्स करके आपको बस x के वैल्यूज वैरी करने, एंड दैट वी हैव टू for that we have to use calc button. For that we have to use calc button. So now just press calc button. आपके स्क्रीन पे आ जाएगा x क्वेश्चन मार्क, बट आपको कौन से वैल्यू के लिए चाहिए, 30 के लिए चाहिए तो 30 प्रेस करो और इक्वल प्रेस करो, आपको 900 मिल जाएगा। फिर से इक्वल प्रेस करो, नेक्स्ट 44 वैल्यू डालो, 44 इक्वल प्रेस करो, ये मिल जाएगा, इक्वल 66, इक्वल 62, इक्वल ऐसे करते जाना है बस। देखो आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. ओके हाँ, सो दिस इज फॉर अ सिंपल केस। नाउ लेट मी गिव अ कॉम्प्लिकेटेड केस, क्योंकि ये आगे आगे आने वाला है। एक टेबल में आपको देता हूँ, जल्दी से कैलकुलेट करो, देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो 3.7, 1.3, 2.9, 1.9, 0.8, 1.3, 1.4, 2.6। अभी मैं थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, अभी आपको कैलकुलेट करना है एक्स आई इंटू वाई आई, ठीक है। और नेक्स्ट सपोज आपको कैलकुलेट करना है एक्स आई स्क्वायर। चलो अभी ये तो हो गया, एक्स आई स्क्वायर तो हो गया, या क्योंकि इसके आगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए जितना है उतना एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे कुछ अगर आपको टेबल कंप्लीट करना है, या आगे है या इतना टेबल आपको कंप्लीट करना है क्विकली, हाँ, तो आप क्या करोगे, पहले आपके पास कैल्सी में ऑलरेडी 2 वेरिएबल अवेलेबल है, x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है, ओके। तो अभी आपको पहले क्या करना है, टेक x ऑन अ स्क्रीन, ओके, डू विद मी, टेक x ऑन अ स्क्रीन। आप अपने हिसाब से देखो आपके कैल्सी में क्या बटन है उसके लिए। टेक y ऑन अ स्क्रीन, अल्फा प्रेस करके यहाँ पे SD बटन है, देन प्रेस कैल्क बटन। फिर क्या आ रहा है स्क्रीन में, x क्वेश्चन मार्क आ रहा है। Yes, sir. एक्स क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 3.7, इक्वल प्रेस करो। फिर आ रहा है वाई क्वेश्चन मार्क, वाई की वैल्यू क्या है, 1.3, इक्वल प्रेस करो। व्हाट इज द आंसर, करेक्ट है, यस। So answer is coming in fraction. हाँ, फ्रैक्शन में आ रहा है तो एसडी बटन प्रेस करो। एक ऐसा बटन है वो प्रेस करो, कन्वर्जन का वो। आर यू गेटिंग दिस नाउ? Yes, sir. x is 3.7, y is 1.3। फिर से इक्वल प्रेस करो, अगेन x क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू इज 2.9, y क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू इज 1.9, एंड यू विल गेट दैट। वो फ्रैक्शन में आई थिंक वो इसमें आ जाएगा, रैशनल में आ जाएगा, एस डी बटन प्रेस करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दैट गिव्स यू 5.51। कंटिन्यू दिस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर से आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर स्क्रीन पे करके आपको कैल्क बटन प्रेस करना है। अगर वाई स्क्वायर का करना है तो वाई स्क्वायर स्क्रीन पे लेके कैल्क बटन प्रेस करना है, डन। तो ऐसे ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। हर टाइम पे 3.7 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इक्वल, सो इट टेक्स टाइम। अब ये तो फिर भी ट्रिवियल है, ओके, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको कैलकुलेट करना है, लाइक अगर मैं ऐसे देता हूँ साइन ऑफ, यू कैन डू दिस ऑल्सो, साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई के लिए, तब आप देखो कितना डिफिकल्ट होगा। हर टाइम पे इतना कुछ पुट करना डिफिकल्ट होगा, तो आप डायरेक्टली कैल्सी में ऐसे सेट कर सकते हो, साइन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। You can set this formula on calculator and then just press calc button. Okay, he will ask for x question mark, y question mark. Accordingly, you have to put those values. So this you can do. Sorry. Okay. समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. ओके, अभी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में हमें ये पार्ट चाहिए। एंड नाउ लेट मी जस्ट टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। तो ये टॉपिक हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, अरिथमेटिक मीन
arithmetic mean as standard deviation of 30 items. So how many items are there? Total there are 30 items. And उन 30 items का arithmetic mean आपको given है, which is 20, and its standard deviation is 3. Okay, out of this 30 items, item 22 and 15 are dropped. Okay, टोटल कितने आइटम्स है? 30 आइटम्स है. उनमें से जो दो आइटम है, आइटम 22 एंड 15, दैट वी नीड टू ड्रॉप. तो ये जो 30 आइटम है, ये कौन से 30 आइटम है? x1, x2 अप टू से x28 एंड 29 नंबर का आइटम एज्यूम करो 25, 22 होगा, एंड 30 नंबर का आइटम एज्यूम करो 15. इज दिस करेक्ट? आउट ऑफ दिस 30 आइटम्स, 2 आइटम्स विच आर 22 एंड 15 आर अ ड्रॉप. तो इनको आपको ड्रॉप करना है. ड्रॉप करना है मतलब आपको क्या मिलेगा? x1, x2 अप टू x28 एंड फाइंड न्यू अरिथमेटिक मीन. और इस केस में आपको चाहिए x बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट क्या बोला आप देखो, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ आइटम 22. नेक्स्ट केस में क्या करना है? ये जो 22 का जो आइटम है इसको रिप्लेस करना है 8 से, एंड 15 का जो आइटम है इसको रिप्लेस करना है 17 से. सो नेक्स्ट केस उनकी क्या है? जो 22 का जो आइटम है उसको 8 से रिप्लेस करो, एंड जो 15 जो आइटम है उसको 17 से रिप्लेस करो, एंड इन दिस केस आल्सो कैलकुलेट न्यू अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दिस इज गिवन, ये आपको कैलकुलेट करना है. Is this clear? Is this question clear to all? Yes, sir. कैसे करोगे आप बोलो? तो पहले जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं. क्या गिवन है? अरिथमेटिक मीन गिवन है 20. मतलब व्हाट मीन्स व्हाट? वी हैव गिवन x बार इज इक्वल टू 20. मीन्स व्हाट? x1 प्लस x2 अप टू x28 प्लस ये दो आइटम थे 22 प्लस 15 अपॉन 30 है ना. सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या गिवन है? 20 गिवन है. यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? व्हाट दिस इंप्लाइज? Sum of 28 numbers. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट x1 प्लस x2 अप टू x28 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो क्या आता है बोलो. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 30 इंटू 20, 563. 563. ठीक है, माइनस आपको 22 एंड 15 करना होगा. तो आप चेक करो कैलकुलेशन. जस्ट 1 मिनट. सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू विल गेट फ्रॉम दिस रिजल्ट है ना. नेक्स्ट का भी यूज कर लेते. सिग्मा इक्वल टू 3 गिवन है, मीन स्टैंडर्ड डिविजन. ओके, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 9 होगा. करेक्ट है. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर? फॉर्मूला क्या है? सिग्मा स्क्वायर का 30 आइटम के लिए सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बोलो? 1 अपॉन, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले. 1 अपॉन n समेशन xi स्क्वायर i runs from 1 to n, दिस इज इन 1 ब्रैकेट, माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ये सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है. ओके, हाँ, अब इसमें वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. So 1 by 30 multiply by x1 square, x2 square, x28 square plus लास्ट के 2 आइटम्स क्या थे? 22 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ये हो गया. माइनस x बार मतलब क्या है? मीन का स्क्वायर क्या होगा? मीन इज 20, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है? 9. तो इससे आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम दिस सेकंड रिजल्ट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर अप टू x28 स्क्वायर. कैन यू टेल मी दैट? इसमें बस 12270. क्या आ रही है? 12270. 12 270. 270. ओके, ठीक है. नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस फर्स्ट केस है ना. सो 28 आइटम का मीन क्या आने वाला है? उसकी एडिशन अपॉन 28 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या आंसर आ रहा है इसका? 563 अपॉन 28.
व्हाट इज दैट? करो ये अपॉन 28, क्या आंसर देगा वो? 20 point So we have to subtract some values from it. which values? So 22 square and 15 square. From 12 to 70. ओके वो रह गया क्या? तो आप करेक्टेड मुझे बोलो, टेल मी दैट करेक्टेड वैल्यू। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्या करना होगा आपको? 20 स्क्वायर मतलब वो आएगा 400, ये जाएगा राइट साइड में, ओके। फिर उसको मल्टीप्लाई होगा 30 से, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट 22। So it is 11561. मैं भी कर लेता हूँ, यस इट इज करेक्ट, 11561। ये दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये बस देख के आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ओके एंड नाउ टेल मी दिस 563 अपॉन 28 फर्स्ट केस में, ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी पीपीटी में, इट इज ऑलरेडी देयर, सेम अप्रोच से हम जा रहे हैं ना। सो 30 आइटम में से 2 आइटम्स आपको गिवन थे 22 एंड 15, ओके। एंड व्हाट वी हैव गिवन, अरिथमेटिक मीन इज 20, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3, ठीक है। सो हाँ, सो समेशन 30 आइटम की सम अपॉन 30 इज इक्वल टू 20, दिस इज गिवन ना, अरिथमेटिक मीन इज गिवन, बट इनमें से 2 आइटम आपकी क्या है 22 एंड 15, तो अगर मैं उनका यूज कर लेता हूँ, है ना, सो फ्रॉम दैट आई विल गेट समेशन ऑफ एक्स आई, फर्स्ट 28 आइटम की सम मिलेगी और स्क्वायर भी मिलेगा, यहाँ तक हमने किया था, ठीक है। उसके आगे आपको कैलकुलेट करना है, व्हेन वी ड्रॉप दिस 2 आइटम्स, मतलब नाउ देयर आर ओनली 28 आइटम्स, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई अप टू 28 अपॉन 28, बट ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 563, सो 563 अपॉन 563 अपॉन 28, दैट गिव्स यू 20.1071। एंड नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है, बट आपको 28 आइटम्स के लिए ही करना है। सो 1/28 समेशन आई रन फ्रॉम 1 to 28 एक्स आई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो मीन लेना है ये 28 आइटम का ही मीन लेना है, तो ये कौन सा मीन होगा, न्यू मीन, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। रिमेंबर दिस, यहाँ पे आप गलती से प्रीवियस मीन लिखोगे ना, विच इज टोटली रॉन्ग, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ओनली फॉर 28 आइटम्स, ठीक है। तो 28 आइटम का ही मीन यहाँ पे लिखना है। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके एंड फिर इसका कैलकुलेशन आपका आता है 2.9321। नाउ आपको नेक्स्ट केस में क्या करना है, 22 को 8 से रिप्लेस करना है, 15 को 17 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इनमें से 2 आइटम अभी आपके क्या आएंगे, 8 और 17। तो इसको अगर मैं अलग कर देता हूँ, तो एक्चुअली मीन कैलकुलेट करते समय पहले 28 आइटम है ना, और फिर न्यू आइटम कौन सा आपने ऐड किया, 8 एंड 17, बट ये जो पहले 28 आइटम थी इसकी सम आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी 563, तो वो वहाँ पे डाल दो, यू विल गेट द न्यू अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करते समय है ना, फर्स्ट 28 आइटम का सेपरेट करता हूँ और न्यू आइटम का सेपरेट करता हूँ, 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट 28 आइटम का स्क्वायर ये आपको पता ही है 11561, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिग्मा स्क्वायर भी मिल जाएगा न्यू केस, सो दैट गिव्स यू सिग्मा इक्वल टू 3.6019। ऐसे आपने 11th 12th में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे, दिस इज जस्ट द एडजस्टमेंट, ओके। सो एंड इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी है, सो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द डिस्पर्शन, द सेकंड स्टैटिस्टिकल टूल। So we'll stop here today, and from next session we'll start the movement. Okay, so this topic is also lengthy. Next part is movement. After that, regression, which is also lengthy, regression part. Then curve tracing. This is the syllabus. So it's a lengthy topic. Okay, any doubt from your side?